ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل دے اندر تنگی محسوس نہ کرن، فیصلہ میرے خلاف کیوں آ گیا ہے، بلکہ اپنی بات چھڑ دین، سونے نبی پاک دی سنت من لین، آپ دی حدیث نو من لین۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، مننا ہے تے خوشی نال مننا ہے، اگر تنگی نال بھی منیا تے پھر بھی ایمان کوئی نہیں، مننا ہے تے خوشی نال مننا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر خمے تسلیم کر لینا، انج مننا جویں منن دا حق ہے۔ آ میں تینوں دساں جڑے محبت کرن والے ہوندے نے انج منیا کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام آپ نال سب تو زیادہ محبت کرن والے، اور اسی طرح ہی آپ دی اطاعت بھی اللہ اکبر انج کرن والے جویں میرا رب چاہندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات نو انج منن والے جویں عرشاں دا رب چاہندا ہے۔ لیتا باذن اللہ دی تفسیر پڑھ کے انہاں دکھایا ہے۔ آ میرے ویر صحیح البخاری دا ایک واقعہ پیش کرنا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی اور تینوں پتہ چلے گا محبت کنوں آندے نے، اپنی ساریاں خواہشاں چھوڑ دینیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اطاعت کنوں کہندے نے سنیا جے ذرا۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، انہاں دی ہمشیرہ دا نکاح ہویا ایک بندے نال، انہاں طلاق دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے طلاق رجی دیتی، ایک طلاق دیتی ہے، عدت گزر گئی ہے، انہاں رجوع کوئی نہیں کیتا، رجوع نہیں کیتا، عدت گزر گئی، بعد دے اندر انہاں دا خیال ہویا ہے اپنا گھر بسانا چاہیے، مینوں اپنی بیوی دے نال رہنا چاہیے، اپنے گھر دے اندر مینوں راضی خوشی رہنا چاہیے۔ انہاں رابطہ کیتا حضرت ماقل بن یسار نال جو ولی سن، کیونکہ باپ فوت ہو چکیا سی تے بھائی ولی سی ہمشیرہ دا، انہاں جو رابطہ کیتا نا تے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اللہ دی قسم ہن میں تیرے نال نہیں ٹورنا، تو پہلے طلاق دیتی ہے اس واسطے ہن میں تیرے نال نہیں ٹوراں گا۔ ادھر نہ قسم چک لئیے، ادھروں جناب انہاں دی ہمشیرہ بھی پریشان، وہ بھی چاہتی ہے چلو اگر کسی طرح رستہ نکلدا ہے تے میرا گھر بس جائے۔ اللہ اکبر، اللہ خاوند بھی چاہندا ہے، بیوی بھی چاہتی ہے، لیکن سرپرست درمیان دے اندر رکاوٹ بن گیا ہے۔ آؤ لوگو اللہ پاک دا قرآن سننا، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ اللہ فرماندے نے اگر پیچھے آیت کریمہ دا ترجمہ اور میں او بیان کر رہا جیڑا مختصر میں پورا کر سکا، محل استدلال پوری آیت کریمہ دا مفہوم ہے اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو رجی طلاق دے دے عدت گزر جائے تے بعد دے اندر رجوع کرنا چاہے، اللہ فرماندے نے بیوی بھی راضی ہوئے، خامد بھی راضی ہوئے تے جڑا سرپرست ہے نا او نہ روکے انہاں نو نکاح کرن تو فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، نہ روکن سرپرست انہاں نو نکاح کرن تو اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ اللہ فرماندے نے اگر میاں بیوی راضی نے انہاں دا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ انہاں دی رجی طلاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے جناب ماقل بن یسار نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بلا کے آپ فرماندے نے ماقل میں تیرے بارے سنیا تو قسم چک لئیے کہ میں اپنے جناب بہنوئی دے نال اپنی مشیرہ نو نہیں ٹورنا، تے ادھروں رب دے قرآن دا حکم آ گیا ہے کہ اگر مومن ہو تے تواڈے لیے بہتر ہے، اگر تواڈے اندر ایمان ہے تواڈے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ میاں بیوی راضی نے تے سرپرست رکاوٹ نہ بنن، تیرا دس کی خیال ہے؟ صدقے جاواں محبت ہوئے تے ہو جائی، قربان جاواں اطاعت ہوئے تے ہو جائی۔ آکھن لگے محبوب جی اگے جو کیتا سی اپنی مرضی نال کیتا سی، اور حکم جو آ گیا ہے اور میں اپنی قسم دا کفارہ بھی دے دیاں گا تے عمل کراں گا تے اللہ دے قرآن تے کراں گا، تواڈے فرمان تے کراں گا۔ اے جے ایمان، اے جے محبت، اے جے اطاعت، اور تین
तिन्ने चीज़ां लाजम और मलजूम ने। ईमान होए तो मुहब्बत हुंदी है, मुहब्बत होए तो इताअत हुंदी है। इन्हां तिन्नां चीज़ां चों एक साइड ते कर दिओ, तिन्ने ही फारग हो जाणगियां। कोई कवे इताअत ते है पर मैनूं मुहब्बत नहीं, वो बंदा भी फारग है। कोई कवे मुहब्बत भी है तो मैं ईमान नहीं लियाउंदा, वो भी फारग है। ईमान लियाउणा भी जरूरी है, मुहब्बत करनी भी जरूरी है, ते सारे बोलो इताअत करनी भी जरूरी। इताअत ही नहीं करनी तो कादी मुहब्बत है। आओ मेरे भाई इंज इताअत करो। मेरे और तेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके नमाज पढ़ा रहे ने। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी अंदर ते नमाज पढ़ांदे अल्लाह पाक ने हुक्म दे छड्डिया सी इस नमाज तो पहले फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। 17 महीनिया तो बाद आप दी हिजरत तो 17 महीनिया तो बाद आप दी दुआ दे जरिए अल्लाह पाक ने किबला चेंज कर दिता है। आपने नमाज पढ़ाई है असर दी ते नमाज पढ़ाई है। नबी पाक अलैहि सलाम ने अल्लाहु अकबर कबीरा बैतुल्लाह वाल मुंह करके ते सहाबी ने नमाज पढ़ी है। वो जा रहा है अपने घर दे अंदर, रस्ते अंदर एक मस्जिद है। सहाबा इकराम नमाज पढ़ते ने पे बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल उलट है, बैतुल मक़दस दूसरे पासे, बैतुल्लाह दूसरे पासे। सहाबा नूं अजे पता ही नहीं। और इत्थे मैं मसला भी समझावां। वो सहाबा इकराम अल्लाह दी कसम है जिन्ने साडे पाकिस्तान दे जो वली ने ना, असीं ने औलिया इकराम ने, इन्हां सारियां तो आला अजमत वाले, शाना वाले, मुकामा वाले, लेकिन फासला कितना है? 2-3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन किसी नूं इल्मे गैब कि जी किबला चेंज हो गया है तो नबी पाक ने नमाज इधर पढ़ी, आप इधर पढ़ ली, पता ही कोई नहीं। जब तक आके दसे नमाज अद्धी हो गई। अल्लाह अकबर। तो एक सहाबी जो नमाज पढ़ के जा रहा सी ना, इतने भी पता चलिया सारिया मसीतां दा टाइम इको नहीं सी। जिवें असीं कही आ रहे ना भी इको ही टाइम रखो, जरूरी नहीं। उत्थे असर पढ़ी अगे गए तो उन्होंने अपने टाइम ना रखी सी, थोड़ा बहुता 15-20 मिनट का घंटा अगे पीछे हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। तो सहाबी ने ना नमाज के दौरान ही आवाज दी, कहन लगा नबी पाक दे यारो मैं हुणे नमाज पढ़ के आया, अल्लाह पाक ने किबला चेंज कर दिता है। इंज करो नबी पाक अलैहि सलाम दी सुन्नत ते अमल करो। इन्हां दे कन्नां च आवाज आउण दी देर है। हजरात ने नहीं आखिया चलो बाद दे अंदर वेखांगे अगली नमाज दे अंदर। उन्हां उसे टाइम अल्लाह अकबर सहाबा ने मुंह दूसरे पासे कर लिया। इमाम भी उधरों आके दूसरी साइड ते आ गया है और उन्हां नमाज अद्धी बैतुल मक़दस वाल पढ़ी है। ते जदों नबी पाक दा फरमान सुनिया है फौरन बैतुल्लाह वाल मुंह करके अद्धी नमाज बैतुल्लाह वाल करके मुंह पढ़ी है। अल्लाह अकबर। तुसी गए हो माशाअल्लाह, बड़े गए हो। जेड़े नहीं गए अल्लाह सारियां नूं मक्के मदीने लै जाए। उथे अज भी मस्जिद किबलातैन मौजूद है। और किबलातैन की है मेरे सोने नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबा दी इताअत दा मिनारा है। सुने तो फौरन अमल कर लिया। इतने जिंदगियां गुजर गईयां कि नबी पाक अलैहि सलाम दी सुन्नत चेहरे ते सजाओ, असी सजाने लिए तैयार है माशाअल्लाह। तैयार हो कि नहीं? आज तो तैयार होना। आज ही वादा करो कि नबी पाक दी इंशाअल्लाह सुन्नत चेहरियां ते। हुण ते दाढ़ी का मसला ही बयान करो तो कई बंदे आते हैं मौलवियों नूं लंबी दाढ़ी है। हालांकि हुण बयान ही बहुत घट होंदा है। हालांकि वेखो ना बंदा अगर फौत भी हो जाए, वो मेरे शेख शफकत साहब कहते होंदे ने कि किड्डी दूरों बंदा आउंदा जी अमरीका चों, वो मूँह वेखण आया। वो मूँह जिहड़ा है तो फरिश्तियां ने भी कब्र च की वेखना है? वो बोलो उन्हें वेखना भी नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत है चेहरे ते है कि नहीं। तो ये ना हो भी उत्थे काम खराब हो जाए। तौबा करो, नबी पाक की इताअत करो। ऐसे सहाबा इकराम और सारे नबियों चो कोई एक भी बगैर दाढ़ी दे बोलो यार ते सारे सोहने है कि नहीं? बोलो सारे आला है कि नहीं? ते असी एवें परेशान हो जाए, गल दूर ना चली जाए। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। कहनात दे लोगों अगर रसूल मन्निया जे फिर इताअत भी करो, मर्दियां अपनियां ना करो, नबी पाक अलैहि सलाम दे ताबेदार बन जाओ। अल्लाह अकबर। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा आखिर ते नतीजा भी कड्डां कि इताअत करोगे ते किड्डी आलीशान जन्नत मिलनी है। ऐत पढ़दे आ लेकिन मेरे वीर अगली गल सुनिया जे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हजरत अबू राफे सारे को रदी अल्लाह ताला, उन्होंने ना एक मकान बेचना चाहा, अल्लाह अकबर, ते मकान दे पैसे लगे 500 दिरहम, अल्लाह अकबर कबीरा। ते उन्होंने गवांढी सन हजरत साद रदी अल्लाह नु, उन्होंने पता चलिया, कहन लगे यार ये मकान मैनू दे, मैं तेरा गवांढी हाँ ते लवांगा भी 400 का। किन्ने का रेट लाया? 400 का। अल्लाह अल्लाह, उन्हें कहा जी मैनू 500 लगा है तो मिलने भी नकद दिया। हजरत साद कह लगे देना भी 400 है तो देना भी किस्तां च। इतने किस्तां च होवे ते आपां वधा लैंदे आ ना भी किस्तां ने ते नकद 500 का ते किस्तां 700 का, हर शै है इन्ने दे लखां दी गड्डी ते वध करके। अल्लाह अकबर, इत्थे चलदा है। पर इत्थे गल सुनने वाली जे जरा, वो इत्थे पैसिਆਂ दी कदर नहीं, इत्थे महबूब दी इताअत दी कदर है। अल्लाह अल्लाह, हुण गल सुनिया जे, उन्हें कहा जी 400 देना है ते देना भी जदों होणगे उवें देना है। हजरत अबू राफे रदी अल्लाह नो कहन लगे ऐ साद रदी अल्लाह नो, अल्लाह दी कसमे मैं कदी भी 500 दिरहम नहीं सी छड्डने जेड़े मैनू नगद मिलते पै सन, पर हुण नबी पाक दी हदीस आ गई है कि जेड़ा जार है, जेड़ा बंदा हमसाया है आ हको वो ज्यादा हकदार है। हुण मैं दिरहमां वल नहीं वेखांगा, सोने नबी पाक दी हदीस वल वेखांगा। ऐ जे इताअत, ऐ जे फरमा बरदारी। साडी हालत की है? 5 रुपइया ते लड़ाइयां, 10 रुपइया ते झूठियां कसमां, असी किवें दी इताअत करने आ? अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अगली गल सुनिया जे, मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, सोने नबी पाक दे कोल 2 औरतां आईयां ने, एक मां है एक बेटी है। बेटी दे हत्थां दे अंदर सोने दे मोटे मोटे कंगण पाए हुए ने। हदीस पाक जामे तिरमिज़ी अंदर एक गल सुनिया जे जरा, ओने जरा जेड़े कंगण पाए ने गलीज़ा तान बड़े मोटे मोटे ने। आप फरमांदे ने इन्हां सोने दा ज़कात भी दित्ती है कि नहीं? कहन लगियां महबूब जी ज़कात नहीं दी। आका फरमांदे ने जेड़े सोने की ज़कात ना दी जाए क्या पसंद कर दिया हो? अल्लाह इन्हां सोने दे 2 कंगणा के बदले तुहानू जहन्नम दी अग दे कंगण पवा देवे। इन्नी गल सुनन दी देर इताअत वेख, फरमा बरदारी वेख। अल्लाह दी कसमे उस बच्ची ने अपने कीमती दोनों कंगण सोने दे कंगण ला के मेरे महबूब अलैहि सलाम दे कदमां पाकां च रख दिते ने ते नाल ही कह दिता है ऐ अल्लाह वास्ते ने, अल्लाह दे रसूल वास्ते ने, अल्लाह कबूल करे महबूब जी जिन्नू मर्जी दे दिओ। तुहाडा हुण हुक्म आ गया है, ऐसी शै जेड़ी सानू जहन्नम दी तरफ ले जा सकदी है। सानू सोना नहीं चाहिदा, सानू नबी पाक दी मुहब्बत चाहिदी है ते आका दी इताअत चाहिदी। ऐजे जिंदगियां जिन्हां दी अज मैं तस्करा कर रहा है, ईमान ना दसो ईमान ताज़ा हो रहा कि नहीं हो रहा? ते साडी जिंदगी कैसी है? जोर टाइम भी अल्लाह दी नाफरमानी, असर टाइम भी रब दी नाफरमानी, मगरब टाइम भी रब दी नाफरमानी, इशा टाइम भी रब दी नाफरमानी, फजर टाइम भी रब दी नाफरमानी। कोई खुशी आ गई ते उत्ते भी ढोल टमके ते कंजर मेरे भाई, उत्ते भी नाफरमानी। जे कोई गमी आ गई ते उत्ते भी रस्मां ते रिवाजां च अपनी मर्जी ते नाफरमानी। असी केड़ा कलमा पढ़िया? असी कैसे मुसलमान आ? कोई तबका नहीं बचिया जो मुखालफत नहीं कर रहा, कोई थोड़ी कर रहा, कोई ज्यादा कर रहा। ओ मेरे वीरों मेरे भाइयों, किते भुलेखे च ना मारिया जाए जे कि एवें नमाज़ां कलियां पढ़ लियां ते कल्ले दावे कर ले ते पार हो जावांगे। रब ने 30 पारे कतों नाज़िल कीते ने, कल्ला ही कह दिता जांदा बस नमाज़ पढ़ लो, बाकी भी अहकाम ने। हाँ हाँ, नमाज बुनियादी रुकन है, इस तो बगैर फलाह नहीं, इस तो बगैर कामयाबी नहीं। लेकिन तेरा लैन देन का मामला, तेरे विरासत के मामले, तेरी जिंदगी के अंदर नबी पाक की इताअत और फरमा बरदारी इंज होए, ए गल मुक्कन लगी जे। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इशा दे करीब अपनी मस्जिद पाक अंदर बैठे ने। आप तशरीफ फरमाने, जबरील अमीन आ गए। अल्लाह पाक ने हुक्म नाज़िल फरमा दिता है, जबरील अमीन हुक्म लेके आए। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबियो कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन
युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे सोने नबी जी अपनी बीवियां नूं भी फरमा दिओ, अपनी बेटियां नूं भी फरमा दिओ, सारे मोमना दी औरतां नूं भी ऐलान कर दिओ वड्डियां वड्डियां चादरां बना लैन और पर्दे दा इहतमाम कर लैन। अल्लाह 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 इन्हां वास्ते पकीज़ा भी है, इन्हां वास्ते इज्जत ते बेहतर भी है। ये हुक्म आया है चंद सहाबा आप दे कोल बैठे ने, इशा दा टाइम है, इशा तो बाद दा वक्त है। वो अंसारी सहाबा घर गए, जाके नबी पाक ने जो ऐत सुनाई है उन्हां घर जाके औरतां नूं सुना दी है, क्योंकि खास हुक्म औरतां वास्ते पर्दे दे अंदर नाज़िल होया है। उन्हां जाके अपनी मावां नूं, अपनी बेटियां नूं, अपनी बीवियां नूं, अपनी भैणां नूं अल्लाह दा हुक्म सुना दिता है। अम्मी जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान कर दियां ने मैनूं अंसार दी औरतां ते रशक आंदा सी। रात दे टाइम अल्लाह पाक ने हुक्म नाज़िल कीता है, उस टाइम वेखो कोई मार्केटां नहीं ते ना ही घर अंदर कोई कपड़े, ना ही कोई नियां खुशहालियां, गुरबतां बड़ियां, इको ही कपड़े अंदर जिंदगियां गुजर गईयां। लेकिन वेख इताअत कैसी है, सहाबियात ने हुक्म सुने हैं रात सुतियां नहीं। अल्लाह दी कसम है घर दे अंदरों सुई लभी है, धागा लभा है, चिराग दा इंतजाम कीता है ते टाकियां लब लब के, टुकड़े लब लब के सारी रात सहाबियात ने सी के ओदियां चादरां बनाईयां ने। हदीस पाक च आउंदा है फजर दी नमाज सहाबियात पढ़न वास्ते मस्जिद नबी जाइयां ने। अल्लाह दी कसमे सोने नबी ते रब दे कुरान ते अमल करके पर्दा करके आईयां ने। इंज हुंदी है तात। अज साडियां बीबियां ते साडे घरां दे माहौल की ने। दुआ करो अल्लाह सानू भी मनण दी तौफीक अता फरमाए। आप दी आमद दा मकसद रब दे कुरान ने बयान कीता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। और अल्लाह पाक फरमाते ने मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह। और कायनात दे लोगों जिन्हें मेरे सोने महबूब अलैहि सलाम दी इताअत की थी उन्हें रब दी इताअत की थी। और अल्लाह पाक फरमा रहे ने जिन्हें इताअत की थी ऐ कायनात दे लोगों मैं जन्नत अता करांगा। ऐसी असीम शान जन्नत ऐ दुनिया भुल जाओगे। इत्थे बंदा करोड़ां दा, अरबां दा, खरबां दा मालिक होए, पूरे जहान दा कल्ला बादशाह होए, रब्बे जुल जलाल दी कसम आपने फरमाया जन्नत के अंदर एक सोटी रखण दी जगह पूरे जहान तो हल आए। जो गरीब बंदा भी जन्नत च जाएगा इनू पूछा जाएगा वो कदी कोई दुख वेखिया ही, परेशानी वेखी हो, जेड़ा पूरी जिंदगी दुख अंदर परेशानी अंदर गुजार गया है, कहेगा मैं ते कदी दुख वेखिया ही नहीं। ये क्यों जन्नत मिलनी है? आप दी इताअत नाल, आप दी फरमा बरदारी नाल। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। अल्लाह फरमा रहे हैं जिन्हें अल्लाह दी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत की थी, फरमा बरदारी की थी, उन्होंने मैं अपने इनाम याफ्ता लोगों के नाल जन्नत अता करनी है। सुभान अल्लाह। एक नबी नहीं सारे नबी, क्योंकि नबियां ते इकट्ठे माल होने ने।